Hey warriors, I know how much effort you have been giving, how much you have been fighting every day, not just emotionally, mentally, physically, in all aspects, just for one dream you are holding. Either you are a CA inter student or a CA final student. This is a wake up call for you from now onwards. You have to understand this 30 days can be a game changer. During my CA final preparation, once the result was out after failing, I used to pick up really well. But the last 30 days, I literally screwed up all my preparation. And I don't want you to repeat this mistake, please. Being a mentor, I want you to stay strong this time mentally. You have to start working with faith. आपका अभी तक जैसा भी प्रेपरेशन रहा, हाउ मच मोर यू कुड हैव स्टडीड इन योर पास्ट डेज, ये सब अभी बैठना मत सोचने के लिए. आई ऑलवेज फेल्ट इन द लास्ट 30 डेज आई कुड हैव डन बेटर जब मेरे पास टाइम था. ट्रस्ट मी, ये सारा कुछ ना 30 डेज एक गेम चेंजर होता है एक स्टूडेंट के लाइफ में. दोज हु आर मेंटली टफ, they know how to use these 30 days. I have seen my friends honestly जो 1.5 month ना literally मस्ती करते थे, enjoy करते हुए कुछ आवर्स पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, they did not bother much. The last 30 days ना they just hide it from the world. They turned off their phone, they showed up and I did not do it. This was the reason they cleared before me and I got stuck with attempt after attempt. You need to understand, आपके साथ already ये start हो चुका होगा. Your mind must be saying, I'm not sure मेरे से हो पाएगा कि नहीं, छोड़ देते हैं सब कुछ. I just want to leave for this attempt. मत करना ये mistake. Every attempt is a turning point. Like you know what? आपको fear के साथ अब रहना नहीं है. You can't afford it. Fear is not going to give you result. Fear is something now which will only hold you back. God also give results to those who trust, who keeps faith. Fear is an enemy inside you that will just stop you back. तो आपको अगर एक कोई भी तरह का fear आ रहा है, सबसे पहले समझो fear natural है, वो आएगा अगर आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो. But what really matters ना, आप वो fear को immediately कैसे overcome कर रहे हो. जितना बार आज से ये fear ignite होगा, just pause. Whatever you are doing, put your hands over your heart, close your eyes, take few deep breath in, breathe out. जब आप breathe out कर रहे हो ना, आप अपने body से वो fear को निकालना, release करना. Breathe in again, release the fear. Remind yourself, if lakhs and lakhs of students can work for their dream, so can I. I will give my best, I will show up, I will trust on myself. I don't care what others are thinking right now. For me, what really matters is this 30 days. Let the end result be decided by God. All I need is to have faith to stand strong. Okay? Second, it's really important. You know, before 30 days also, I was always perplexed with one decision. I should give both the groups of one group only. 12th attempt, same question, same repeated pattern, gave me failures after failure. Now it's okay. Even if you are ready for one group, take a strong mental call. Yeah, don't bother what your friends will be thinking or what others will be thinking. What is important is, as per your preparation, analyze, evaluate. 30 days, if you feel you can clear first group, any of one group, just go for it without any second thought. Second, if you feel you can manage both the groups, please go with it. Don't bring doubts, but plan one group with group 2 papers, like one paper each day along with group 1. Don't try to overwhelm कि अभी group 2 कर लेते हैं फिर last का few days group 1 कर लेंगे. Like you don't have to confuse yourself. जो भी माइंड मैप है ना, अभी क्लैरिटी के साथ काम करना है. कंफ्यूजन्स में आप लिटरली एक्शंस नहीं ले पाओगे, आपको स्ट्रेस होगा ज्यादा. तो ये स्ट्रेस एंड प्रेशर से अभी खुद को सेव करने का टाइम है. ठीक है.
थर्ड, इफ यू फील आपका ग्रुप 2 का कुछ पेपर्स अच्छा है, लाइक 1 और 2, गो विद द फर्स्ट ग्रुप, प्रॉपर प्लानिंग, एंड सेकेंड ग्रुप का ना आप जो एक पेपर को टारगेट कर रहे हो, स्टडी दैट विद ग्रुप 1 एवरी डे, ठीक है। तो इससे क्या है, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट अगर आप एक भी ग्रुप को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, यू विल हैव ओनली फ्यू पेपर्स लेफ्ट। नाउ कमिंग टू वन मोर थिंग, how I worked now, like I focused during my inter, I'll tell you, because this was a positive trait which I carried with me. I was completely focused towards group 1 and I scored really good marks. I feel so happy with the marks I scored. Group 2 now, I've targeted only SM and 50% of audit and FR. Like that too also, it was partial, only 1 hour, 1.5 hour every day. And with aggregate I got the result. So अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये 30 days में ना, if you are ready, मतलब this 30 days during my inter ना, I studied with the right mindset. मतलब वो माइंड में वो क्वेश्चन मार्क ही नहीं था रिजल्ट क्या होगा, मेरे माइंड में एक ही चीज था, just like I prepared for my 12th board where there is no second attempt. जो मार्क्स लाना है इसी अटेम्प्ट में, मतलब इसी एग्जाम में लाना है। आई स्टडीड विद द सेम माइंडसेट। अटेम्प्ट्स को लाना मत अपने माइंड में इफ यू आर गोइंग विद बोथ द ग्रुप्स। दैट मीन्स यू हैव टू शो अप मोर देन व्हाट यू डिड इन द प्रीवियस मंथ। प्लीज याद रखना, ये 30 डेज ना अगर आप विन कर लिए, लाइक आपको रिजल्ट्स मिलेगा। आई हैव सीन दिस डिफरेंस मेरे इंटर के प्रिपरेशन एंड फाइनल्स में। फाइनल्स में एग्जाम आते आते ना एक गिव अप वाले स्टेट में आ जाते थे, अपने इमोशनल मेंटल हेल्थ को कोप अप ही नहीं कर पाते थे। बट इंटर में आई स्टडीड विद वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। रिजल्ट वाज नॉट अटैच्ड टू मी, ऑनेस्टली एकदम डिटैच वे में पढ़ते थे, अपना बेस्ट देना। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू ट्रेन योर माइंड। जब भी आपको लग रहा है, देखो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कोई भी स्टूडेंट के लाइफ में, आफ्टर अ डे या हर दिन ना शाम होते होते रात होते होते आप थोड़ा सा खुद से नेगेटिव हो जाओगे या आपको लगेगा आपसे नहीं होगा। बहुत बार ना हमारे माइंड को हमारा वॉइस समझ नहीं आता। दैट टाइम यू नीड अ सीनियर, यू नीड अ फैमिली मेंबर, अ मेंटोर, समवन हु कैन मेक योर माइंड बिलीव हो जाए। तो उस टाइम पे इंस्टेड ऑफ एम्पलीफाइंग ऑल द नेगेटिविटीज, टेक अ पॉज, immediately call to someone, vent out all the emotions, all the negative thoughts which your mind is producing to the person in front, and फिर उनको बोलने देना, उनके एनर्जी को, उनके वॉइस को अब्सॉर्ब करना। ओके, you have 720 hours before you appear, you go to that exam center. You know what, ये जो लास्ट 30 days होता है ना, इसमें एक अलग स्पीड के साथ अगर आप पढ़ लोगे ना, मैटर भी नहीं करेगा अभी तक आप कितना रिवाइज क्यों क्या क्यों, बिकॉज जो अभी फ्रीक्वेंट का पढ़ा हुआ रहता है ना, वो एग्जाम में जल्दी जल्दी याद आ जाता है। नाउ डोंट जज, आपको 3 रिविजन देना था और अभी तक आप फर्स्ट भी नहीं दिए, फर्स्ट रिविजन भी नहीं किए, ये सब जज मत करना। ये समझ लेना, आई नो मेरे को रिजल्ट मिलेगा इसी में, 3 रिविजन क्या अभी जो पढ़ रहे हैं मेरे को एग्जाम में, इट्स गोइंग टू हेल्प मी। I have to trust this. I have to give my best. Like quitting, wasting time over things which are not relevant. You need to identify all sorts of distraction. अगर phone distraction है ना, please अपने phone के energy से cut करना खुद को। If phone is something you feel you are still scrolling, bro, this is a red flag for you. Right now, just say, God, please help me with the energy, right power to disconnect with my phone. I don't want to attach myself with its energy. आप फोन के एनर्जी से इतना अटैच हो जाते हो ना कि आप समझ नहीं पाते हो, एंड यू हैव टू जस्ट विजुअलाइज आपका फोन है, ये एनर्जी है आपके एंड आपके फोन के बीच में, एंड वो एनर्जी को आप सिजर से कट कर दो, आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर दो। दीज सिंपल एंड लाइक लाइफ हैक्स रियली वर्क्स। ठीक है, आपको ट्रस्ट करना होगा मेरे पे, आपके पास अभी चॉइस नहीं। नेक्स्ट 30 डेज में अपना आपको जो भी पर्सन है, रिलेशनशिप इशू हो गया, फैमिली ड्रामास हो गया, समथिंग विच इज एक्सटर्नल, यू नीड टू क्रिएट अ बाउंड्री। आपको जितना बार
मेंटली ये चीज अफेक्ट करता है जब आप पढ़ने बैठ रहे हो. टेक अ पॉज, क्लोज योर आईज. वेरी सून आई विल बी अपलोडिंग अ विजुअलाइजेशन वीडियो जहाँ पे आप अपने रिजल्ट को विजुअलाइज करोगे. एट 5 to 7 मिनट्स ना वो वीडियो को मेडिटेट करना, या फिर आप उसी टाइम पे जस्ट टेक अ पॉज एंड कनेक्ट विथ एनी ऑफ द गुड स्पिरिचुअल्स लाइक भजन, एनीथिंग, एनी गॉड, यूनिवर्स, व्हाटएवर यू ट्रस्ट, आप वो करना. I usually, whenever I get emotionally drained due to any outside world na, I simply close my eyes and play Om Namah Shivaya. It helps me to get out of those negative emotions. So आपको ये काम भी प्लीज करना है. If you catch yourself with negatively, fear का I have already told you. Clarity रखना है, confusion के साथ काम नहीं करना है. Which group to get? If you have any particular problem which is bothering you in loop, प्लीज टाइम, डेज, आवर्स मत वेस्ट करना. ईच मिनट, ईच आवर इज इम्पोर्टेंट. अभी से ना आपको 1 hour एट अ टाइम डील करना है. यू हैव 720 आवर्स, ठीक है, बिफोर एग्जाम. व्हाट यू नीड टू डू इज 720 आवर्स अपने कॉपी में लिख लेना. 720 आवर्स. आफ्टर एवरी 1 hour यू आर टेकिंग 1 minus to it, right? 1 hour के बाद you have to just go to the washroom or anywhere across. You have to smile, you have to cherish, high-five yourself and say I did win this 1 hour. चलो 5 minutes के ब्रेक के बाद I will give another 1 hour. बहुत बार लाइफ में ना मिरेकल्स प्ले करता है, वो तभी वर्क करेगा. मेरे इंटर में किया था ऑनेस्टली. There was like group 2 on like it was just my faith, confidence एंड अ डिटैचमेंट विथ माई रिजल्ट, जहाँ पे ना बहुत कम एफर्ट के साथ मुझे ग्रुप 2 का इंटर का रिजल्ट मिला था. तो अगर आप मेंटली इमोशनली अभी स्टेबल्ड हो ना तो बोथ ग्रुप के लिए जाना. बट इफ यू फील कि आप बहुत ज्यादा फियर, ओवर थिंकिंग ये सब से काम कर रहे हो तो डोंट डिसाइड फॉर बोथ द ग्रुप. इज अगेन आई विल रिकमेंड यू एंड 1 hour को विन करना स्टार्ट करो. इफ यू फील वन थिंग विच वर्क्स फॉर मी, आप बहुत परेशान लग रहे हो, आपको अंदर से बहुत हैवी फील हो रहा है, सिंपली वॉक आउट फ्रॉम द प्लेस यू आर इन. अगर आपके घर पे टेरेस है, बालकनी, विंडो, गो आउट, लुक अप टुवर्ड्स द स्काई. द हायर पावर इज सिटिंग देयर. आपको उनसे बात करना है. यू हैव टू सी द क्लाउड्स मूविंग, यू हैव टू सी द सन शाइनिंग, यू हैव टू मेक योरसेल्फ बिलीव लाइफ इज अ जर्नी. उस जर्नी का ये चैप्टर है सीए का एग्जाम एंड हो जाएगा, ठीक है. आप जब क्लाउड्स में देख के ना अपने प्रॉब्लम से, अपने एंजल से या क्लाउड, मतलब एक नेचर से आप अगर कनेक्ट करोगे ना, आपका माइंड इंस्टेंट शिफ्ट लेता है, आपके एनर्जी में एक एनहांसमेंट आता है. ये सारा चीज को एक इसके लाइफ में ना, स्टूडेंट के लाइफ में बहुत मैटर करता है. बट अनफॉर्चुनेटली वी वर नेवर टॉट अबाउट दिस. तो प्रॉमिस मी यू आर गोइंग टू शो अप. गिव अप मत करना. इतना टाइम होल्ड किए हो, ये 30 days ना, इससे डबल में काम कर लो. लाइक जो भी आपका कंफर्ट है ना, किल दैट कंफर्ट, गेट आउट. लाइक इट इज समथिंग, इफ समवन टेल्स यू, इफ यू वर्क फॉर out of 720 hours, nearly 600 hours for the next 30 days, I will give you 1 crore rupees. Will you take action or not? Just answer yourself. अगर आपको ये 30 days काम करके 1 CR मिलेगा तो आप करोगे कि नहीं? तो वही एनर्जी में काम करना, ठीक है. Don't feel disappointed. Whenever you feel low, you can reach out to me. I have given details for the next 30 days. I'll try my best. I'm available for all of you. एग्जाम से आने के बाद प्लीज अपने पास्ट पेपर्स को, मतलब जो एग्जाम दे के आए हो, डोंट ट्राई टू चेक एंड इवैल्यूएट थिंग्स राइट नाउ. मतलब वो एग्जाम का आई विल ब्रिंग अनदर वीडियो फॉर यू. राइट नाउ योर प्रिपरेशन इज इम्पोर्टेंट. लेट योर पास्ट बी पास्ट. ये डाउट्स मत लाना अगेन कि आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो व्हाट एवर यू हैव स्टडीड. ये रैंक होल्डर 1 के साथ भी प्रॉब्लम है, फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के साथ भी है, मल्टीपल के साथ भी है. दिस इज हाउ ह्यूमन माइंड फंक्शन. इसीलिए ये प्रॉब्लम सबके साथ रहता है. बट जिसका अटेम्प्ट लग जाता है या जिनका भी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है ना, वो इसी टाइम पे एकदम उनको फील होता है मेरे से नहीं होगा. बट ऐसा कुछ नहीं है जो एक ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता है.
कुछ भी करने के लिए अपना माइंड, मेंटल टफनेस सबसे इम्पोर्टेंट है. वेयर आई गॉट वीक. आई वॉन्ट टू जस्ट सेव यू. 30 days, give your best, work for your dream, a beautiful life, a beautiful future. Your parents are waiting for you. Stay connected. All the best for your preparation.